Okay, we will wait for 1 minute. All the videos are uploaded on YouTube channel. If you find any difficulty, then please go to that particular topic because every video is named and in sequence. Okay, part one, part two, part three, likewise. So just go there and look for the particular topic you are having doubt in. कुठल्याही याच्यामध्ये तुम्हाला डाऊट असेल पर्टिक्युलर टॉपिकमध्ये तर युट्यूब चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत व्हिडिओज तिथे जा ऑन यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ एनी अदर रिसोर्स आय एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग यू टू टेक हेल्प ऑफ एनी जस्ट यू मस्ट नो द कन्सेप्ट दॅट इज द थिंग तुम्हाला कन्सेप्ट कळणे महत्वाचे आहे बाय एनी मीन्स कॅन टेक हेल्प ऑफ एनीथिंग एनी मटेरियल बट जस्ट रेफर द स्टँडर्ड मटेरियल we will, till the other students join, we will just quickly revise what we have studied yesterday or in the previous lecture. We started the third unit, operator overloading. They are the topics we are going to cover in third unit. So, operator overloading is an example of the polymorphism concept of OOP. Polymorphism means ability to take more than one forms, basically having two types, compile time and runtime. Compile time having two types, function overloading, operator overloading. And runtime is having virtual function. Virtual function concept you will get to know later when you understand the concept of inheritance. Compile time polymorphism is about function overloading and operator overloading. इसमें से हमने function overloading पढ़ा है using the same function name more than once in the same program to execute different tasks. That is function overloading. In this unit, you are going to study operator overloading. So basically, operator overloading is giving an additional task to an existing operator. As you can see in this example, the plus operator sorry, the plus operator is used to add the two integers as well as the plus operator used to join two strings. And hence, every time the result is different. And hence we can say the plus operator is overloaded. We can add the built-in data types directly, like the integer data types, floating data types, right? But what about the user-defined data types? Can we add them directly or can we perform the operations with any operator on the user-defined data types like objects directly O1 into O2? So the answer is no, we can't perform it directly, but with the help of overloading and operator function, we can do this. These are some of the operators which can't be overloaded. To give an additional meaning to the operator, you have to write the code inside the class. ठीक है, आपको अगर कंपाइलर को बताना है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी अगर एनकाउंटर होते हैं, so how to add them, then you have to write the operator function inside the class. Okay, so that special function and its syntax is here. You can see return type, class name, scope resolution operator, कीवर्ड ऑपरेटर ओपी मतलब ये सिंबल होगा उस पर्टिकुलर ऑपरेटर का और यहाँ आर्गुमेंट लिस्ट एंड देन फंक्शन बॉडी. This is something important that you must remember while overloading any operator. Basically, in this unit, you will study the unary operator overloading and binary operator overloading. Unary operator means which takes one operand. Binary operator means which takes two operands. While overloading any operator, you can use the member function or you can use the friend function. So regarding this table is constructed where you can see अगर आप member function use करके operator overload करते हो तो कितनी arguments pass करनी है और friend function use करके अगर operator overload करते हो तो कितनी arguments pass करनी है. In both the cases, unary operator and binary operator. So in case of the unary operator,
मेंबर फंक्शन यूज अगर आप कर रहे हो तो आपको 0 आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ती है, और बाइनरी ऑपरेटर के केस में अगर आप मेंबर फंक्शन यूज करके ओवरलोड कर रहे हैं तो 1 आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ती है. If you are using friend function to overload the operator, these operators, then in case of unary, you have to pass 1 argument explicitly, and in case of binary, you have to pass 2 arguments explicitly. Why this is so? ये ऐसे differences क्यों है? क्योंकि member function ये class का part होता है, इसलिए वो directly objects को one of the argument can be accessed directly, or which will be used to invoke or call that particular function directly, and hence passed implicitly. But in case of the friend function, all the arguments, since it is an outsider function, all the arguments need to be passed explicitly. अगर वो अनरी ऑपरेटर है तो पूरी 1 आर्ग्यूमेंट आपको एक्सप्लिसिटली पास करनी पड़ेगी, अगर बाइनरी है तो दोनों की दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपको एक्सप्लिसिटली पास करनी पड़ेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको सिंटैक्सेस लिखने में प्रॉब्लम होगी. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स व्हाइल ओवरलोडिंग. ये कुछ एग्जांपल्स. ऑपरेटर ओवरलोडिंग की प्रोसीजर बेसिक 3 स्टेप्स है. क्लास बनाओ, ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेयर करो और उसका कोड लिखो. क्लास लिखो, क्लास के अंदर ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेयर करो. आप मेंबर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, आप फ्रेंड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको डिफाइन करो कि इसने क्या करना चाहिए. इसमें हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में अनरी ऑपरेटर्स तक पढ़ा था. एम आई ऑडिबल? यस मैम. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. इसमें हमने सबसे पहले अनरी ऑपरेटर्स का प्रोग्राम देखा था एक सिंपल. तो हम सबसे पहले देखेंगे अनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन, अनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन. ओके, ऐसे दोनों प्रोग्राम्स हम देखेंगे. सो इसको लिखने जब हम कॉल करते हैं, ये जो अनरी ऑपरेटर्स आपने ओवरलोड कर लिए, फंक्शन भी लिख लिया, उसके बाद आप उसको कॉल कैसे करेंगे मेन फंक्शन में, यहाँ उसके तरीके लिखे हैं अलग अलग. Either you can call operator directly by writing the symbol and then object name. ये अनरी ऑपरेटर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है. उसके बाद आप इनकी ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी. ओके, और यू कैन write it like this also: x dot operator op off. Okay, means what you are passing here, no argument, because we know that the table says कि अनरी operator अगर using member function आपको इन्वोक करना है तो नो आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड, लेकिन अगर फ्रेंड फंक्शन यूज करके करना है तो एक आर्ग्यूमेंट पास करनी है. इसलिए यहाँ आप देख सकते हो कि जब मैंने मेंबर फंक्शन यूज करके किया तो ये कॉल जो है ना, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपने लिखा हुआ एक्स डॉट, तो ये तो कॉल ही करता है, ठीक है, तो वो इम्प्लिसिटली पास हो जाता है. तो यहाँ पे आपको अलग से कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनरी ऑपरेटर को एक ही आर्ग्यूमेंट लगती है. ओके, एक ही ऑपरेंड लगता है. तो सॉरी, नॉट आर्ग्यूमेंट, ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड लगता है, और ये ऑपरेंड ये ऑब्जेक्ट उसे जो कॉल कर रहा है ना वही होता है, इसलिए यहाँ कुछ पास करने की जरूरत नहीं. समवन प्लीज म्यूट योर माइक. फॉर अनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, अनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन अगर आप कर रहे हो तो आपको ऐसा सिंटैक्स लिखना पड़ता है: ऑपरेटर ओपी इन ब्रैकेट एक्स. मींस हियर आपको वो ऑपरेंड जो है वो एक्सप्लिसिटली यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख के पास करना पड़ता है. तो कितनी आर्ग्यूमेंट हुई? 1. One argument needs to be passed explicitly if you are overloading unary operator using friend function. Okay. किसी ने अपना माइक अनम्यूट करके रखा है, प्लीज म्यूट चेक करो सब लोग अपने माइक्स. नाउ बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी ऑपरेटर्स को कैसे कॉल करते हैं? तो फॉर बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन देयर आर 2 डिफरेंट वेज. Either you can write it like this, x o p y, ठीक है, जैसे ऐसे सपोज मैंने लिखा a ऑब्जेक्ट का नाम है, a प्लस ऑपरेटर है a प्लस b, ठीक है. और दूसरा ये तरीका है x डॉट ऑपरेटर op ऑफ y. इसमें से एक ऑब्जेक्ट जो है ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पास. किसी ने अपना माइक अनम्यूट करके, प्लीज म्यूट योर माइक. ओके,
सो एक्स डॉट ऑपरेटर ओपी ऑफ वाई में एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करेगा और दूसरा पास होगा, इसलिए यहाँ एक ही आर्गुमेंट एक्सप्लिसिटली पास करनी पड़ती है। ठीक है। फॉर बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, इसमें देखो कैसे लिखते हैं, ऑपरेटर ओपी इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। यहाँ जब आप फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं तो दोनों की दोनों आर्ग्यूमेंट एक्सप्लिसिटली पास करनी पड़ती है। यहाँ कितनी पास की थी, एक ही पास की, क्योंकि एक ने कॉल किया था, क्योंकि मेंबर फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो सकते हैं, राइट, यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम। लेकिन फ्रेंड फंक्शन होते क्या ऐसे कॉल नहीं, इसीलिए इसको अलग से कॉल करना पड़ता है और दोनों आर्ग्यूमेंट सेपरेटली पास करनी पड़ती है। दैट इज द रीजन। अब हम इसमें एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम इसमें जो ऑपरेटर पढ़ेंगे अनरी ऑपरेटर। ठीक है, अनरी का मैंने एक ही ऑपरेटर में आपको दोनों वे से ओवरलोड करके दिखाऊंगी, एक मेंबर फंक्शन और एक फ्रेंड फंक्शन यूज करके। हम जो ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे उसका नाम है अनरी माइनस। अनरी माइनस ऑपरेटर क्या करता है, सिंबल चेंज कर देता है। मतलब अगर आप ए की वैल्यू 5 है और 5 के सामने अगर आप अनरी माइनस अप्लाई करो तो माइनस ए हो जाएगा। मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए after the applying the um, unary minus operator, the value of a will be -5। ओके, तो यही हम चीज क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। बिल्ट इन डेटा टाइप्स हम यूज नहीं करेंगे, हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स यूज करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट के सामने हम ये ऑपरेटर लिख के कॉल करते हैं तो क्या होता है। सो unary minus when applied to object will change the sign of each variable of that object। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट ने होल्ड किए हैं अलग अलग तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, उसके क्लास में सपोज डिफाइन लिखिए, तो उन सभी एक्स वाई जेड के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। दैट इज द मीनिंग। तो पहले हम देखेंगे अनरी माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन। अनरी ऑपरेटर, अनरी माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन। तो ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी कल स्टडी किया था। ठीक है, मैं एक क्विक बता देती हूँ, क्विक रिविजन। क्लास डेमो, दो वेरिएबल्स ली है इंट एम। तो क्लास डेमो का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसको ये वेरिएबल्स असाइन हो जाएंगे। ये प्राइवेट वेरिएबल्स है। इसमें हमने तीन फंक्शन लिखे हैं। पहला जो है वॉइड सेट, ये सिर्फ वैल्यू सेट कर रहा है एम एन की 8 और 9 रिस्पेक्टिवली। शो फंक्शन जो है ये डिस्प्ले स्टेटमेंट लिखा है इसमें, एम एन की वैल्यू डिस्प्ले करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। और ये है मेन चीज जिसको आपको पढ़ना है, दैट इज ऑपरेटर फंक्शन। कैसे लिखते हैं ऑपरेटर फंक्शन, इस प्रोग्राम में हम यूजिंग मेंबर फंक्शन कर रहे हैं, तो मेंबर फंक्शन नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे लिखो, वॉइड ऑपरेटर ये कीवर्ड और उसके बाद फिर सिंबल और फिर नो आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हम उस क्लास को एंड कर देंगे और क्लास के बाहर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये देखो ऑपरेटर फंक्शन की डेफिनेशन। इसमें हम वो कोड लिखेंगे जो कंपाइलर को जब ये एनकाउंटर होगा, ये ऐसा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑपरेटर आ गया तो क्या करना है, ये यहाँ पे लिखा होगा। वॉइड डेमो क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर कीवर्ड, सिंबल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। नाउ द बॉडी ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, m इक्वल्स टू माइनस एम, n इज इक्वल्स टू माइनस एन। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा उसके वेरिएबल्स निगेट हो जाएंगे, m और n दोनों भी। अब हम मेन बॉडी लिखेंगे। डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे x, x नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही आपने x नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेमोरी में इसके लिए दो सेपरेट m और n वेरिएबल्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गई। उसके बाद हम x डॉट सेट फंक्शन इन्वोक करेंगे। x डॉट सेट फंक्शन की वजह से क्या होगा, x के m की वैल्यू 8 हो जाएंगी और ऑब्जेक्ट के n वेरिएबल की वैल्यू 9 हो जाएगी। उसके बाद हम कॉल करेंगे x डॉट शो। जैसे ये फंक्शन इन्वोक होगा, ये पहली लाइन आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। उसके बाद हम ऑपरेटर फंक्शन कॉल करेंगे। तो हमें पता है ऑपरेटर फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, ओपी स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। तो ओपी मतलब सिंबल और ऑब्जेक्ट नेम मतलब एक्स, तो हमने -x लिखा। जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे ये फंक्शन कॉल होगा, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और क्या हो जाएगा, ये जो m की वैल्यू है ये -m मतलब -8 होके इसमें असाइन हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू अपडेट होके -9 हो जाएंगी। अब हमें ये अपडेटेड वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, इसलिए हम फिर से x डॉट शो करेंगे, तो ये लाइन प्रिंट होगी आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव नेगेटेड द ऑब्जेक्ट आल्सो, व्हिच इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप।
दैट मीन्स वी हैव ओवरलोडेड द अनरी माइनस ऑपरेटर। जो उसका एग्जिस्टिंग मीनिंग था, अनरी माइनस ऑपरेटर का एग्जिस्टिंग मीनिंग यही था, कंपाइलर को जो पता है बाय डिफॉल्ट कि नंबर को नेगेट करो, लेकिन आपने उसको एक्स्ट्रा मीनिंग दिया बाय राइटिंग दिस ऑपरेटर फंक्शन, जहां आपने कंपाइलर को समझा के दिया कि अगर ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो क्या करना है। ठीक है, तो आपने उसका मीनिंग एक एक्स्ट्रा टास्क देके एक्सटेंड किया एंड हेंस यू हैव ओवरलोडेड दैट ऑपरेटर। अब हम दूसरा एग्जांपल इसी ऑपरेटर का देखेंगे बट यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि कहाँ चेंजेस होंगे। पूरे प्रोग्राम में कहीं चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ आपका ऑपरेटर फंक्शन बदलेगा और मेन में इन्वोकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है इस प्रोग्राम में। देखो, क्लास डेमो विल राइट द क्लास इंट mn। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में फिर से हम तीन फंक्शन लिखेंगे, पहला सेट, दूसरा शो और तीसरा ऑपरेटर फंक्शन। सेट क्या कर रहा है, सिर्फ m और n की वैल्यू 8 9 इनिशियलाइज कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी इसे कॉल करेगा। शो फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू डिस्प्ले करेगा, इसलिए सी आउट स्टेटमेंट लिखा है एक। और ये है यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, आपको अभी ऑपरेटर फंक्शन लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, फ्रेंड फंक्शन है मतलब फ्रेंड कीवर्ड, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड, फिर सिंबल और फिर यहाँ पे आर्गुमेंट। अब आपको पता है अनरी ऑपरेटर अगर आप ओवरलोड कर रहे हो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन तो कितनी आर्गुमेंट पास करनी पड़ती है एक्सप्लिसिटली। यस, आंसर। If you are overloading unary operator using friend function, how many arguments need to be passed to it? Yes, answer. टेबल देखो। Yes, someone answer. कितनी पास करनी पड़ती है, 0 1 2 3 4 10, कितनी? Yes, answer. Yeah, I want you to answer. Someone answer. अरे तो झोपलेगा। Yes, answer someone. Are you there? Am I audible? Ma'am, one. Okay, one, correct. अब आप लोग मुझे एक आंसर करो इस चीज का। मैं आपको चार क्वेश्चंस पूछूंगी, चार क्वेश्चंस का आंसर दो। हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू द व्हेन वी ओवरलोड अनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन? आंसर करो। 0. 0. हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू बी पास्ड व्हेन वी ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन? One. 1. 1. Okay, next question. How many Next question. How many arguments to be passed when we overload unary operator using friend function? 1. 1. How many arguments to be passed when we overload binary operator using friend function? 2. 2. Two. 2. ओके, यहाँ पे आप इस ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि जब फ्रेंड फंक्शन जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर को जितना ये ऑपरेंड लेता है ना ऑपरेटर, उतनी पूरी की पूरी आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होती है। अनरी ऑपरेटर कितनी ऑपरेंड्स लेता है, एक, तो एक जो है वो पूरी आपको एक्सप्लिसिटली पास करनी पड़ेगी। बाइनरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड्स लेता है, बाइनरी मतलब प्लस माइनस, ये दो दो ऑपरेंड लेते हैं ना, ए प्लस बी लिखना पड़ता है, सी प्लस सी माइनस डी लिखना पड़ता है, दो ऑपरेंड्स हो गए सी और डी, दो हुए ना, और ये एक ऑपरेटर, तो ये बाइनरी हुआ। तो कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, दो, तो कितनी पास करनी पड़ेंगी, फ्रेंड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो पूरी की पूरी दो, ऐसे ध्यान में रखो। और ये जो होते हैं ना मेंबर फंक्शन, ये क्लास का ही हिस्सा होते हैं, तो एक जो है इम्प्लिसिटली पास हो जाता है ऑब्जेक्ट इसमें, क्योंकि कॉलिंग करता है ना, एक ऑब्जेक्ट एक ऑपरेंड कॉल करने के लिए यूज होता है और दूसरे फिर बाकी के पास हो जाते हैं, इसलिए इसमें 1 माइनस आर्ग्यूमेंट्स पास करनी पड़ती है। मतलब अनरी ऑपरेटर है तो 1 माइनस 1 0, बाइनरी ऑपरेटर है तो 2 माइनस 1 1। तो आप ये चीज ध्यान में रखो, ये अपने आप आ जाएंगे आपको, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। तो यही आपको इस प्रोग्राम में
ऑपरेटर फंक्शन लिखने के काम आएंगे। ये चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो ही आप प्रोग्राम लिख सकोगे। देखो इस प्रोग्राम में कितने आर्गुमेंट पास किए हैं। डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट पी, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट पी मतलब डेमो क्लास का वेरिएबल इस टाइप का। और ये जो है ये बाय रेफरेंस पास किया है, तो ध्यान में रखना है आपको ये चीज। ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस ही पास करना है। आप ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू पास करेंगे तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होंगे। यू हैव टू पास इट बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस जब हम पास करते हैं तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट में चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, because it is like you are handing over the address of that object, and hence the changes are reflected into the actual object. If you are passing it by value, then only a copy of that object is passed and actual object parameters doesn't change. Hence you need to pass the object by reference in this case. Remember this point. नाउ फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर माइनस। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो कितनी आर्गुमेंट पास करनी पड़ेंगी, एक, इसलिए यहाँ एक आर्गुमेंट पास की है डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट, वो भी बाय रेफरेंस। एम्परसेंट लिखा है ना, मतलब बाय रेफरेंस। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। ये देखो इसकी डेफिनेशन, क्लास एंड कर दिया सेमीकोलन। अब इसकी डेफिनेशन चेक करो। जब हम फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है क्या, नहीं। वो रूल सिर्फ मेंबर फंक्शन के लिए है। फ्रेंड फंक्शन एक आउटसाइडर फंक्शन है, इसे वो सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते जो मेंबर फंक्शन होते हैं। ये आउटसाइडर है, इट डिड नॉट हैज टू फॉलो all the rules. Okay, so whatever its characteristics it will be implemented only in that way. तो फ्रेंड फंक्शन को हम क्लास के बाहर जब डिफाइन करते हैं तो डायरेक्टली उसका रिटर्न टाइप और नाम लिखते हैं। सो वॉइड ऑपरेटर माइनस डेमो एम्परसेंड पी, व्हाट दिस फंक्शन विल डू। अब आपको पता है कि फ्रेंड फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है the variables of the object, hence it needs to use the dot operator along with object name. तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, minus p dot m will be assigned into the m variable of the calling function and minus p dot n will be assigned into the n variable of the respective calling objects n variable. Okay, so what will happen here, उनकी जस्ट यहाँ जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसके एम एन की वैल्यू निगेट होके जिसने इसे कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट के एम एन में असाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो वॉइड मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले वैल्यू सेट कर दी, 8 9 वैल्यू सेट हो गई। अब वो डिस्प्ले करेंगे प्रेजेंट वैल्यू बिफोर ऑपरेटर फंक्शन। अब हम इसको कॉल करेंगे फ्रेंड फंक्शन यूज करके। अगर आप ओवरलोड कर रहे हैं तो कैसे कॉल करते हैं, जैसे फ्रेंड फंक्शन कॉल होता है, ऑपरेटर माइनस और यहाँ एक आर्गुमेंट पास करो। वो आर्गुमेंट क्या रहेगी, इस ऑब्जेक्ट का नाम। ओके, so this object will be passed by reference, as you can see this syntax. Okay, ampersand, so this will be passed here, यहाँ, and then what will happen, x के m variable की वैल्यू निगेट होके means -8 will be assigned into the m and -9 will be assigned into the respective objects n variable, and hence if you will try to print the value of m n variable for object x, now it will be -8 -9. तो डिफरेंसेस आपको जो ध्यान में रखने हैं कि हम जब फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं तो सिंटैक्स जो डेफिनेशन है उसका डिक्लेरेशन और ये ऑब्जेक्ट इसके जो वेरिएबल्स एक्सेस होते हैं ये कैसे चेंज होता है। जैसे ये मेंबर फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स लिसन, दिस इज द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, सो इट कैन एक्सेस डायरेक्टली एवरीथिंग। ये वेरिएबल्स डायरेक्टली एक्सेसिबल है इसे। आप डायरेक्टली -m लिखो इस फंक्शन के अंदर और फिर उसे नेगेट करो, उसके साथ चाहे जो करो, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है, इनको इसके साथ पूरा एक्सेस है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन आउटसाइडर है, फ्रेंड फंक्शन को कुछ रूल्स फॉलो करके ही इनको एक्सेस करते आता है। तो डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम यूज करके कर सकता है।
इसलिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट पास किया और उसके नाम की हेल्प से हमने इन्हें एक्सेस किया. ओके, दैट इज द थिंग. So minus p dot m is equals assigned into m minus p dot n assigned into n of the calling object. Okay, जो भी यहाँ पे object, not calling object, the argument as an the object which is passed as an argument here. Okay, तो उसके रिस्पेक्टिव वेरिएबल आपको एक्सेस करने हैं और m और n में असाइन करने हैं. इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसा सिंटैक्स लिखा है. तो ये डिफरेंस एक आपको ध्यान में रखना है कि ओवरऑल जिस इस पूरे दो प्रोग्राम्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. ये चीज डेफिनेशन, एक्सेस मैकेनिज्म, डिक्लेरेशन और कैसे कॉल करते हैं. इस प्रोग्राम में भी देखो, दोनों प्रोग्राम में जहां डिफरेंसेस है वही चीज मैं मार्क कर रही हूँ. डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, एक्सेस मैकेनिज्म, इन्वोकिंग स्टेटमेंट. यही डिफरेंसेस है बस. और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अगर आपको वो टेबल समझ में आ गया है और आपको पता है कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेंबर फंक्शन क्या होता है, मेंबर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप ये प्रोग्राम बहुत इजीली लिख सकते हैं, समझ सकते हैं. बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग. बाइनरी ऑपरेटर में हम प्लस एडिशन ऑपरेटर जो है आपका प्लस सिंबल वाला, इसको ओवरलोड करके दिखाएंगे. जिन स्टूडेंट्स ने इस बार का प्रैक्टिकल अटेंड किया होगा, सेक्शन ए में हमने हो चुका है, ये सेक्शन बी का पता नहीं मुझे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम हुआ है या नहीं, बट अगर आपने वो प्रोग्राम रन किया होगा तो ये प्रोग्राम आपको समझने में आसान होगा. So binary operator plus, here it will add two complex numbers and will generate the third. ऑब्वियसली ये जो नंबर है इन्हें होल्ड करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे. अब ये देखो, इसमें हम दो प्रोग्राम सीखेंगे. बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग नंबर फंक्शन, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन. अगेन अपने दिमाग में वो सारे रूल्स या टेबल जो है वो आपके इसमें आ जाना चाहिए, मेमोराइज हो जाना चाहिए कि क्या रूल्स है जो आपको प्रोग्राम लिखने में अभी हेल्प करेंगे. What is the meaning of binary operator which takes two operands? Okay, so we will simple हम plus operator को है क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे. अटेंडेंस आ गई क्या मसला ली? ओके, नाउ सी हियर. इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे. ओके, सिंपल है. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में लिखे जाते हैं, p प्लस आई क्यू. ओके, अब इसमें जो ये पार्ट होता है इसे रियल पार्ट बोलते हैं और ये जो आई के साथ जुड़ा होता है इसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं. तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है दूसरे नंबर के, और रियल पार्ट पहले नंबर का दूसरे नंबर के रियल पार्ट के साथ ऐड होता है. मतलब रिस्पेक्टिव रियल पार्ट्स और रिस्पेक्टिव इमेजिनरी पार्ट्स की एडिशन होके एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हम जनरेट कर सकते हैं. तो यही आपको इस प्रोग्राम में करना है. पहला प्रोग्राम यूजिंग मेंबर फंक्शन है. ठीक है, तो यहाँ जो भी फंक्शन आएगा आपका ऑपरेटर फंक्शन, वो मेंबर फंक्शन मतलब क्लास का मेंबर रहेगा. नाउ सी, क्लास कॉम्प्लेक्स दो वेरिएबल्स लिए है, प्राइवेट एक्स और वाई. एक में रियल पार्ट स्टोर करेंगे, एक में इमेजिनरी. पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे क्या क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टर्स लिखे हैं. पहला कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कुछ नहीं कर रहा है, नल बॉडी. ये सिर्फ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. ओके, डिक्लेयर होगा whenever any such declaration like complex, ये जो डिक्लेरेशन कॉम्प्लेक्स C1, C2, C3, इनके टाइम पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और इन्हें कंस्ट्रक्ट करेगा. Then second is the augmented constructor, float real, floaty match. What this constructor is doing, it is initializing the x and y values with the respective arguments. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जाएगी x वेरिएबल में उस ऑब्जेक्ट के, और सेकंड आर्ग्यूमेंट जाएगी y वेरिएबल में ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट, जिसके लिए ये कंस्ट्रक्टर हम इन्वोक करेंगे. नाउ सी, वी हैव रिटर्न. ओके, टू कंस्ट्रक्टर्स हो गए. उसके बाद एक फंक्शन लिखा है शो. शो फंक्शन विल सिंपली डिस्प्ले द वैल्यू. ये सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए है, आउटपुट शो करना है ना. तो p प्लस आई क्यू के फॉर्मेट में आना चाहिए, इसलिए पहले x की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए
उसके बाद ये प्लस आई एज इट इज, और फिर वाई, मतलब यहाँ वैल्यू होगी सपोज 4, तो 4 आएगा, फिर प्लस आई एज इट इज प्रिंट होके आएगा क्योंकि ये डबल कोट्स में है, और सपोज y की वैल्यू है 3.0, तो 3.0 यहाँ प्रिंट होगा। इस फॉर्मेट में हमें नंबर्स प्रिंटेड चाहिए। ये हो गया शो फंक्शन। अब हम इस मेन चीज पे फोकस करते हैं, दैट इज ऑपरेटर फंक्शन। यहाँ हम ओवरलोड कर रहे हैं यूजिंग मेंबर फंक्शन। नाउ लुक एट दिस, रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड, सिंबल प्लस ऑपरेटर है हमारा, एंड व्हाट we have done here, we have passed how many arguments explicitly? How many arguments explicitly passed to this? One argument. Okay, see, complex type की एक argument %c. So by reference, obviously we are going to pass reference because we want actual changes to be reflected into the past argument, into the object which is passed as an argument here. Okay, so that's why we will be using here reference call. Now see what will be the code inside this operator function. So पहले हम एक temp नाम का अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ये कैलकुलेशन स्टोर करेंगे। तो क्या होगा, temp डॉट एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पहले नंबर का रियल पार्ट प्लस दूसरे नंबर का रियल पार्ट। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, x प्लस c डॉट एक्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट का x, और मतलब ये हुआ कॉलिंग ऑब्जेक्ट का x रियल पार्ट, और ये है द ऑब्जेक्ट विच इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट उसका रियल पार्ट। दोनों ऐड होके temp, ये जो नया ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया है उसका रियल पार्ट बनेगा। सिमिलरली y प्लस सी डॉट वाई, पहले ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी पार्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी पार्ट मिला के इस नए ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी पार्ट बनेगा और ये वैल्यू रिटर्न करेगा। Now as you can see, let us have a look at the main body, the complex C1 C2 C3। मैं इसका डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ आपको, ठीक है। पहले आप मेन फंक्शन देख लो, इससे आपको समझ में आएगा कि कौन किसे कॉल कर रहा है। कॉम्प्लेक्स C1 C2 C3, इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, C1। ओके, ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा यहाँ पे डिफॉल्ट वाला। देन C1 इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स 3 4, यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, ये सेकंड। और C1 के x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हो जाएंगी 4। C2 इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स 4 5, यहाँ फिर से कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और C2 ऑब्जेक्ट को वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। अब हमने लिखा है ये स्टेटमेंट, ये देखो ये स्टेटमेंट है जहां आपका ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा, दैट इज दिस वन। C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो आपको इसमें मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है, देखो इस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो है मतलब कौन है, C1, तो ये है कॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो ये पास होता है यहाँ एक्सप्लिसिटली, ये इसे कॉल करता है, ये इम्प्लिसिट, ये यहाँ पे इम्प्लिसिटली पास होता है और इसके वेरिएबल्स आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो आपको x और y दिख रहा है ये C1 के है, और ये जो राइट हैंड साइड में ऑपरेंड है ये होता है पास एज एन आर्गुमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड है वो इम्प्लिसिटली पास होता है और राइट हैंड साइड में जो है वो एज एन आर्गुमेंट पास होता है, मतलब एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो ये जो आप एक्स वाई देख रहे हो वो एक्चुअली C1 के वेरिएबल्स है, ये जो आप देख रहे हो सी डॉट एक्स सी डॉट वाई, ये यहाँ कौन पास हुआ, C2, तो C2 के वेरिएबल्स है। और ये जो है जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ये C3 बनेगा, क्योंकि ये रिटर्न किसे कर रहा है, इसका आंसर, ये आंसर जो रिटर्न कर रहा है temp of type complex into the C3, and then we are displaying the values. See this, the statement C3 is equals to C1 plus C2, तो C1 जो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड है मतलब प्लस के लेफ्ट में, ठीक है, प्लस के लेफ्ट में, इट इज यूज टू कॉल द ऑपरेटर फंक्शन। क्योंकि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, मेंबर फंक्शन जब यूज करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट नेम यूज करना पड़ता है ना। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़े, S1 डॉट गेट डेटा, तो ऑब्जेक्ट का नाम होता है ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डॉट, और उसके लेफ्ट में ऑब्जेक्ट का नाम होता है, और फिर वो पर्टिकुलर ऑपरेंट फंक्शन को कॉल करता है। तो वही चीज यहाँ हो रही है, जो C1 है ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये है कॉलिंग ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये होता है पास।
एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये जाती है आर्ग्यूमेंट, इसकी बनती है आर्ग्यूमेंट, और ये होता है कॉल करने वाला। ठीक है, तो इसलिए और इनका जो आंसर आएगा ये असाइन हो जाएगा C3 में। तो यही स्टेटमेंट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो इसमें आपको समझ में आएगा वही चीज, C1 डॉट ऑपरेटर प्लस फंक्शन फॉर C2 मीन्स C1 कॉल कर रहा है ऑपरेटर प्लस फंक्शन को जिसमें आर्गुमेंट पास हो रही है C2 की। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो temp डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डॉट एक्स, इसमें एक्स temp डॉट एक्स refers to the real part of C3, x refers to the real part of object C1। इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्लिसिटली पास हो रहा है, और इसे एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट नेम यूज करना पड़ता है। तो C डॉट एक्स हियर कॉम्प्लेक्स एम्परसेंड C डॉट एक्स C डॉट वाई C डॉट एक्स C डॉट वाई, इसका मीनिंग है एक्चुअली C2 डॉट एक्स C2 डॉट वाई। तो actually this C dot x refers to the real part of the object C2. Here it needs to be C dot x refers to the real part of the object C2। यहाँ एक डायग्राम है, इससे समझ में आएगा आपको शायद। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस फॉर कॉम्प्लेक्स C। Okay, now see here what is the thing, temp dot x is equals to C dot x plus x, temp dot y is equals to C dot y plus y and return temp। सो जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना C3 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये स्टेटमेंट देखो आपका, ठीक है। तो C1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड, इसकी वैल्यू डायरेक्टली पास हो जाती है इस फंक्शन में। तो x और y यहाँ आप जो देख रहे हो ये एक्चुअली C1 के रियल और इमेजिनरी वैल्यूज है। C2 जो है ये क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो ये आर्ग्यूमेंट में पास होता है, इसलिए ये जो आप C डॉट एक्स और C डॉट वाई देख रहे हो ये एक्चुअली C2 की वैल्यूज है, C2 का रियल और C2 का इमेजिनरी पार्ट। और ये जो आप जिसमें ये वैल्यूज असाइन हो रही है एडिशन होके, तो इससे बनेगा एक नया रियल और इमेजिनरी पार्ट, और वो कंस्ट्रक्ट करेगा C3 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो कॉल करता है, इसलिए उसके वेरिएबल्स डायरेक्टली एक्सेसिबल है। जो राइट हैंड साइड में है वो पास हुआ एज एन आर्ग्यूमेंट, इसलिए उसके वेरिएबल्स विद द डॉट ऑपरेटर एक्सेस करने पड़ते हैं। और ये जो है ये नया ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर बनाया है, इसलिए इसके वेरिएबल भी आपको विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर एक्सेस करने पड़ते हैं, टेम डॉट एक्स टेम डॉट वाई, क्योंकि ये नया ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर बना हुआ। कॉल किसने किया, सिर्फ C1। तो C1 के ही आप जो वेरिएबल्स है डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बाकी सारे वेरिएबल्स जो है आपको यूजिंग डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट नेम, डॉट ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट नेम यूज करना है। और रही बात इसकी, तो ये डायरेक्टली क्यों यूज कर रहे हैं, इसे क्यों नहीं लिखा C डॉट समथिंग नेम एंड डॉट एक्स, क्योंकि इसी ने कॉल किया इसलिए ये इम्प्लिसिटली पास हो गया, इसने ही कॉल किया इस ऑपरेटर फंक्शन को, तो वो खुद वहां पे इम्प्लिसिटली या उसके इम्प्लिसिटली पास होना मतलब उसके वेरिएबल डायरेक्टली यूज कर पाना, और ये एक्सप्लिसिटली पास होना मतलब इसको एक्सेस करना विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर एंड ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? और ये तो रिजल्ट जो है ये आप बोलोगे फिर ये तो सिर्फ दो ही नंबर्स जा रहे हैं, ये ऐसे कैसे नंबर से, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ देखो हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप ही कॉम्प्लेक्स है, तो वो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो P प्लस IQ के फॉर्मेट में ही, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के फॉर्मेट में ही रिटर्न करेगा। यानी कि हमारी जो क्लास है, क्लास जो डेटा टाइप हमने बनाया है उसी फॉर्मेट में ये वैल्यू रिटर्न होगी, दैट इज दिस वन। ये जो भी आपने डेटा टाइप यहाँ डिजाइन किया है उसी फॉर्मेट में ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने C1 में जैसी कॉम्प्लेक्स 3 4 लिखा, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ और इसकी वैल्यू बन गई C1 इज इक्वल टू 3 प्लस I। उसके बाद जैसे ही आप C2 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 4 5 करते हैं तो C2 नंबर कुछ इस तरह से अंदर कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये जो है आपके डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ये आपको हेल्प करेंगे उस नंबर को शो करने के लिए। और उसके बाद ये जो ऑपरेटर फंक्शन है ये मेन जॉब कर रहा है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, रिस्पेक्टिव रियल पार्ट 3 प्लस 4 7, रिस्पेक्टिव इमेजिनरी पार्ट 4 प्लस 5 9, और नंबर जनरेट होना चाहिए कुछ ऐसे, C3 इज इक्वल टू 7 प्लस I9। ये जो पूरा आपका एडिशन का काम है ये जॉब ये फंक्शन कर रहा है, ऑपरेटर प्लस फंक्शन। एक्चुअली you need to understand
this diagram only. अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गई तो आपको इसमें जो ओवरलोडिंग है वो समझ में आ जाए। आपको सिर्फ ये चीज समझनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है ऑपरेंड वो कॉल करता है, इसलिए उसके वेरिएबल्स डायरेक्टली एक्सेसिबल है। राइट हैंड साइड में कौन है, C2, ये पास होता है एज एन आर्ग्यूमेंट, इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट नेम यूज करना पड़ता है। और ये तो आपका नया ऑब्जेक्ट आपने यहीं पे बनाया, तो इसको एक्सेस करने के लिए भी आपको डॉट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट नेम यूज करना पड़ता है। और बाकी फिर ये स्टेटमेंट्स, दिस इज रिटर्न टाइप मींस इट इज रिटर्निंग दैट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप नंबर्स, दैट इज इट। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। जब आप फ्रेंड फंक्शन यूज करके इसको ओवरलोड करेंगे ना, तो सिर्फ क्या चेंजेस होंगे मैं वहां पे हाईलाइट कर रही हूँ। दिस पार्ट अटेंडेंस alias cell मार्क करें, अच्छा। ओके, वी विल जस्ट एंड दिस पार्ट। सिर्फ मैं इतना बता देती हूँ। सी हियर, कॉम्प्लेक्स वही क्लास है, इसमें हमने यूजिंग फ्रेंड फंक्शन ओवरलोड किया है। ओनली दिस चेंज विल बी देयर। ये जो है दोनों प्रोग्राम्स में फिर से रिपीट करूंगी इफ यू वांट, ओके। But for now, just try to understand the different portion in these two programs. That is this one, the definition part, and this one. आपको ये दिख रहा होगा, ये काफी इजी है। ऑपरेटर प्लस दो ऑब्जेक्ट्स पास किए, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पी, एंड रिटर्न respective real parts to be added, respective imaginary parts added. A dot x plus b dot x, a dot y plus b dot y। और इस पूरे इसका आपको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप रिटर्न करना है जब भी ये फंक्शन इन्वोक होगा। हाउ टू कॉल दिस फंक्शन, C3 इज इक्वल्स टू ऑपरेटर प्लस फॉर C1 कॉमा C। कितनी आर्ग्यूमेंट्स पास की एक्सप्लिसिटली, बोथ, because this is a binary operator overloading using friend function. How many arguments to be passed? Two arguments explicitly, and hence C3 is equals to operator plus for C1 comma C2. So both the objects will be passed explicitly, दोनों की addition होगी और फिर वो रिजल्ट C3 में रिटर्न होगा, सेम आंसर। ओके, तो अगर किसी को इसके बीच में कोई भी डाउट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट जितना भी हमारा टॉपिक हुआ है अब तक, सो जस्ट आस्क मी, प्रेफरेबली फर्स्ट और सेकंड यूनिट के लिए। वी विल एंड हियर, यू मे लीव द मीट। किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग, फर्स्ट सी लुक एट द वीडियोस एंड देन आस्क मी सेशनल रिलेटेड डाउट्स। You may leave the meet. We will repeat this program definitely. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, सबके बुक्स में भी है, ओके। जिन्होंने बुक्स इशू कर लिए उनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। Yes, you may leave the meet. Mark your attendance and leave the meet.